پہلے خواتین کی باری ہے، پھر آپ کی طرف آئیں گے. جی نادیہ. اچھا یہ نام آگے ہیں ہمارے پاس، بلکہ شاہ صاحب آپ ہی ان ناموں میں سے ایک نام نکالیے اور دیکھتے ہیں کہ آپ سے اور پھر اسد بھائی سے کیا سوال آتا ہے. افشاں حامد آپ ہیں؟ جی نادیہ جائیے ان کے پاس، مائک دیجئے اور میں یہاں سے شاہ محمود صاحب کو مائک دوں گا. جی میرا نام افشاں عامر، میں ایک بی ٹی آئی کی ادنا سی کارکن ہوں اور میرا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کویسچن ہے. مجھے اس ٹائم بڑا افسوس محسوس ہوتا ہے جس وقت ایک ہماری مڈل کلاس کی خواتین میرٹ پہ بھی آ جاتی ہیں یونیورسٹی لیول تک، وہاں تک کی تعلیم تو وہ جیسے جیسے حاصل کر لیتی ہیں اور وہاں تک کے اخراجات کسی طرح ان کے پیرنٹس پورے کر دیتے ہیں، لیکن وہ میرٹ بیس پہ بھی پہنچ جاتی ہیں یونیورسٹی لیول پہ اور اپنے فائنینسز کی کمی کی وجہ سے اس ایجوکیشن کے کنٹینیو نہیں کر سکتی، جو کہ ہمارے ایز اے پاکستانی ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، جیسے کہ یہاں پہ کوئی خواتین میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور وہ بہت اوپر تک پہنچ سکتی ہیں، لیکن وہ جو فائنینسز کا مسئلہ ہے اور وہ ان کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے اور وہ وہیں کی وہیں، اور ان کی زندگی جو سی ہے وہ آگے اس طرح نہیں چل سکتی جتنا ان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے. تھینک یو سر، میرا آپ سے یہ کویسچن تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی اس وقت کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز ہو رہی ہیں اس میں ہماری بچیاں ہمارے بچوں سے ایکسیل کر رہی ہیں، امتحانوں میں آگے آ رہی ہیں، اور آپ دیکھیں سول سروس میں آ رہی ہیں، یونیورسٹیز میں آئیں، بیکورڈ ایریاز کی یونیورسٹیز. مثال کے طور پر ہماری ملتان کی بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ہے، اس میں تقریباً نصف جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بچیاں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ذوق موجود ہے، ان میں خواہش موجود ہے، اور اب پہلے والدین ریلکٹنٹ تھے، اب والدین بچیوں کو انکریج کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ اپرچونٹیز نکل رہی ہیں مختلف فیلڈز میں. ایز اے گورنمنٹ ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ، اگر آپ نے ووٹ دے کر عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا اور پنجاب میں آپ کی حکومت قائم ہوتی ہے، تو ہم سوشل سیکٹرز پر اور ایجوکیشن پر پہلے سے زیادہ رقوم خرچ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو ہم وہ مقام دیں. بیکاز دیکھیے ملک کا مستقبل آپ ہیں، اس ملک کا مستقبل اس ملک کی نوجوان نسل ہے، اور اگر یہ بیدار ہو گئی اور تعلیم یافتہ ہو گئی تو پھر ہی بنے گا نیا پاکستان انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اب باری آپ کی ہے اور اسد عمر صاحب بھی یہاں موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں اسد عمر صاحب کس کی پرچی نکالتے ہیں. اور جی عثمان، یہ نام آ گیا ہے سلیمان، اور ہیں بھی آپ کے حلقے کے، جی اسلام آباد سے. آئیں سلیمان، ادھر آئیں. نادیہ آ جائیے، آ جائیے. یہ اسد صاحب دھاندلی تو نہیں کی آپ نے؟ اپنے حلقے کا ہی بندہ نکالا ہے. السلام علیکم. اسد بھائی تھینک یو، میں آپ کے حلقے سے ہوں اور بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دے دیا. میرا سوال یہ ہے اسد بھائی، اگر سپریم کورٹ یہ امپورٹڈ حکومت یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے تو ہماری حکمت عملی کیا ہوگی؟ بڑا زبردست سوال ہے. دیکھو سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی بندوقیں نہیں ہوتی اپنے فیصلے منوانے کے لیے. وہ کس بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں؟ وہ پاکستان کے آئین کے بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں. آئین کس کے لیے بنتا ہے؟ پاکستان کے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، ہمارے لیے بنتا ہے. تو یعنی وہ فیصلہ کر رہے ہیں ہمارے جو مفاد ہیں ان کے دفاع کے لیے. تو پھر اگر ان کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا تو اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری کس کی بنی؟ پاکستان کی عوام کی بنی، پاکستان کے قوم کی بنی. اور پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ آئین کے دفاع کے لیے، سپریم کورٹ کے دفاع کے لیے، جمہوریت کے دفاع کے لیے الحمدللہ تیار ہے. بہت بہت شکریہ. جی اب باری ہے
दोबारा खवातीन की साइड की अब आजम खान स्वाति साहब हैं, तैयारी पकड़े बैठे हैं जवाब देने के लिए। जाइए स्वाति साहब पर्ची निकालें, फिर शिबली फराज साहब से भी पर्ची निकलवाएंगे। आलिया 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 नाम है जी लिखा हुआ। आप हैं आलिया? आप हैं? ना दिया जाइए उनके पास। ये क्या ले आए भाई, ये बताएं ये क्या है? ये खान साहब के लिए। आपका नाम क्या है? जहान जेब। जान जेब। सवाबी से आयो। सवाबी से जान जेब। और ये बताएं ये क्या है? ये मेरा बच्चा। सशो देख दलता दलता हाँ दा गिफ्ट खान साहब लम गिफ्ट रावले रे देखिए सशे दे दे के मुंह टेप लग बोले रे दा ताबी के लिए टूने बाकी। अभी ऑन करें इसको। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आलिया है, मैं पीटीआई की एक मामूली सी कारकुन हूँ। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि इस दफ़ा खान साहब ने कुछ नए लोगों को टिकट दिए हैं, तो इसकी क्या वजह है? और ये आवाज़ नहीं आ रही? जी जी आ रही है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? और दूसरी ये कि खान साहब को यकीन है कि जिन नए लोगों को टिकट दिए वो लोटे नहीं बनेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए खान साहब ने एक पूरा प्रोसेस था जिसके मुताबिक जो है टिकट दिए गए हैं, और मैं चूंकि टिकट देने वाला नहीं था या उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं था, उसमें आपके रीजनल जो प्रेसिडेंट हैं वो थे, दूसरे उस रीजन के जो हमारे ओहदेदारान हैं वो थे। हर लिहाज से एक शफाफियत का अमल था। और अब असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब उसको दोबारा रिव्यू कर रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई ज्यादती हुई है, कोई गलती हुई है, तो उस गलती को जो है वो दूर किया जाए। मैं समझता हूं अपने तजर्बे की बुनियाद पर, ये आप सब ख्वातीन और हज़रात, मेरी बहन ने ये बड़ा जबरदस्त सवाल किया है कि यकीन करें हमारे कप्तान पर इतना एतमाद पाकिस्तान के वोटर्स का हो चुका है कि वो जिसको भी मुंतखब करने के लिए टिकट देंगे इंडिया के बदले जीतेगा। कल मैंने कहा था और अब भी पैगाम देता हूं इन हैंडलर्स को, इन चोरों डाकुओं को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, जिनको जेल में होना चाहिए था, कि तैयार रहो। कप्तान और उसकी टीम 2/3 से नहीं 3/4 मेजॉरिटी से इंशाअल्लाह ताला मुंतखब होकर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? जहान जेब। जहान जेब। स्वाबैन है। हाँ जी। और आपका, ये आपके बेटे, आपका क्या नाम है? तलहा। तलहा। आप अच्छा पहले तो ये बताइए ये है क्या, और आप कितने अरसे से यहाँ पे? ये मैं तकरीबन 7-8 महीने से ये मैं तैयार किया है। मैं बनी अभी नहीं बनी गाला में भी दिया था, वहाँ भी मैंने वीडियो किया था। हाँ, खान साहब के लिए हमने बनाए हैं, इसके कहने पे मैंने बनाया है। अच्छा, क्या मैसेज? अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब, हम आपसे मिलना चाहता है। इंशाअल्लाह आप हमसे जरूर मिलेंगे। ये तोहफा हमने स्पेशल तौर पर आपके लिए गिफ्ट करना चाहता हूँ। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। छोटा तलहा सवाबी आपका लुहान। बिल्कुल, अभी इमरान खान साहब आ रहे हैं और ये जरा चलाइए, इसको हम चेक कराते हैं आपको। ये आवाज बंद भी हो जाती है इसमें, और गाने भी हैं, लगाए ना सर? चले, बहुत बहुत शुक्रिया। भरपूर तालियां इनके लिए जी, भरपूर तालियां। जबरदस्त।
ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ ایک بار اپنے اپنے موبائل فون نکالیں, ان کی لائٹس آن کریں, کیونکہ کپتان اب 1 منٹ میں آ رہے ہیں. سب لائٹ آن کریں. جاگ اٹھا ہے سارا وطن. اس کے ساتھ ہی ہم استقبال کریں گے پاکستان کی آن, پاکستان کی شان, پاکستان کی جان, پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان, امپورٹڈ حکومت کے لیے طوفان, پاکستان کے کپتان, مستقبل قریب ہے پاکستان کے وزیر اعظم خان عمران خان. جاگ اٹھا ہے سارا وطن. پیچھے تک ایک ساتھ مل کے. جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں, مجاہدوں. جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں, مجاہدوں. آج مظلوم ظالم سے ٹکرائیں گے, اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے, سامراجی خداؤں پہ چھا جائیں گے. ساتھ ہے مرد و زن سر پہ باندھے کفن, ساتھ ہے مرد و زن سر پہ باندھے کفن. جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں, مجاہدوں. جو بھی رستے میں آئے گا کٹ جائے گا, وطن کا میدان لاشوں سے پٹ جائے گا. آج دشمن کا تختہ الٹ جائے گا, ہر جری سب شکن, ہر جمع تیگ زن, اور اب ہر جری سب شبلی فراز صاحب سے ایک کوشچن ہوگا. لے جائیے جی پرچیاں شبلی بھائی کے پاس. سینیٹر سیمی ازدی صاحبہ مجھے نظر آئی ہیں یہاں پہ. خوش آمدید جی. آئیے شبلی صاحب. ایک آئیے آئیے آئیے. پرچی 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 پرچی. کس کا نام نکلتا ہے؟ آؤ کا نا. اچھا جی, یہ تو پورا یہ شہزاد احمد حماد بھی لکھا ہوا اس پہ. یہ شناختی کراچی آپ ہیں؟ شہزاد احمد چلے گئے, دوسرا نکال لیتے ہیں. عاقب شاہ, عاقب شاہ جی. مائک پہ جائیں, مائک پہ. عاقب شاہ جلدی سے. یہ جی جی السلام علیکم شبلی بھائی. سب سے پہلے تو مجھے یہ خوشی ہے کہ میرا تعلق بھی کوارٹ سے اور آپ کا تعلق بھی کوارٹ سے ہے. اس کے علاوہ یہ سوال تو میں خان صاحب سے کرنا چاہتا تھا, لیکن آپ بھی ہمارے لیے خان صاحب ہی ہے. شبلی بھائی, جس طرح ان لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے, بینگ اے پٹھان, ہم نے تو اس کو کسی صورت بھی معاف نہیں کرنا. ہم نے جہاں پر ہمیں موقع ملے گا پٹھانوں کو خاص کر کے ان کی چمڑی ہم ادھیڑیں گے. خاص کر کے رانا ثناء اللہ ہمارے ہاتھوں لگے گا تو انشاءاللہ ان سے ہم بدلہ لیں گے. اس کے علاوہ شبلی بھائی, ہماری ٹیم میں ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ ٹیم میں نہیں چل سکتا تو ان کو ہم نے کسی اور جگہ پہ کھلانا ہے, لیکن ٹیم میں ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ کھیلے جو ڈیلیور کر سکے. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ شکریہ. دیکھیں, بہت اہم سوال ہے آپ کا, اور جہاں تک کہ اہلیت کا تعلق ہے اور ٹیم بنانے کا تعلق ہے,
اچھا، جہاں تک کہ ٹیم بنانے کا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب اس ملک میں سب سے بہتر ٹیم بنانے والے کپتان ہیں. انشاءاللہ ہم نے اپنے ماضی کی جو کوتاہیاں یا غلطیاں ہم سے ہوئی تھیں، اس دفعہ ہم نے اس سے سبق سیکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ابھی جو ہماری ٹیم بنے گی یا جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ سب سے بہترین ہوں گے، اور خان صاحب خود ہی ذاتی طور پر تمام جو بھی لوازمات ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے وہ اپنی ٹیم فائنلائز کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو قربانیاں آپ سب نے دی ہیں، جتنے ورکرز ہیں پورے پاکستان سے، انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صرف اس کا کپتان بہادر نہیں ہے، بلکہ اس کے جو ورکرز ہیں، جو اس کی ٹیم کے لوگ ہیں، وہ بھی بہادر ہیں. اور جو ظلم و ستم برپا کیا ہے اس امپورٹڈ حکومت نے، ان بزدلوں نے جو کہ اقتدار کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ہم نے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے نظریے کے مطابق آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور جس طرح خان صاحب کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں ایک قانون بنانا ہے جو غریب، امیر، چھوٹے بڑے سب کے لیے ایک ہی ہو، کیونکہ اگر اس ملک کا اگر مستقبل ہے تو وہ قانون کی حکمرانی سے ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ لوگ جو قانون سے باہر کام کر رہے ہیں ان کا ضرور احتساب ہوگا. شکریہ. بہت بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ہم چیک کرتے ہیں جو ہم روز چیک کرتے ہیں، پہلے آپ نے میرے نعرے کا جواب دینا ہے اور پھر آپ نے، ٹھیک ہے؟ آپ سے ہے سب سے پہلے نعرہ تکبیر. آپ ابھی ٹھہر جائیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور اب آپ کی باری ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ رزلٹ اناؤنس نہیں کر سکتا. رزلٹ میں شاہ صاحب رزلٹ اناؤنس نہیں کر سکتا. وجہ آپ بتائیے. تم نے اپنی بچت کی ضرورت ہے. اور اسد صاحب آپ رزلٹ اناؤنس کر سکتے ہیں. میں رزلٹ اناؤنس کر سکتا ہوں. آپ کو مشکل فیصلے میں ہم ڈال رہے ہیں. اچھا میرے ایک دفعہ دوبارہ کرو، میں کروں گا اناؤنس. ایک بار دوبارہ کراؤ. اچھا جی دوبارہ کریں، چلیں ٹھیک ہے. تو پہلے آپ کی باری. اب اس بار جینٹس کی پہلے باری ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اتنا کافی ہے. تیار ہیں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اسد صاحب سر یہ 20 اوور کے T20 میچ کے بعد آخر میں سکور جو ہے 188 مرد اور 188 عورتیں، میچ برابر ہے. مجھے اگر اندازہ ہوتا ہے کہ اس قسم کا جواب آنا ہے میں آپ سے کبھی بھی نہ پوچھتا. بھائی میچ برابر کر دیا انہوں نے، لیکن اس میں قبول نہیں، نتیجہ ریجیکٹ کر دیا ہے. اسد صاحب بات سنو یہ نتیجہ نہیں، یہ نتیجہ نہیں مان رہے تو یہ جو الیکشن کمیشن اگر کوئی دھاندلی کرے گا تو انہوں نے کبھی ماننا ہے؟ اچھا اب کچھ سوال و جواب کرتے ہیں. عمران خان صاحب جیسے ہی تشریف لائیں گے تو پھر ہم کچھ. شاہ صاحب آپ بتائیے آپ کو کھانے میں کیا چیز پسند ہے؟ مجھے کھانے میں آلو گوشت. آلو گوشت. تو کب آئیں ہم آپ کی طرف؟ مطلب پورے مجمع کے ساتھ آنا ہے؟ پورے مجمع نے آنا ہے تو پھر جس دن
इंतखाबात का नतीजा हो निकलेगा उस दिन आ जाना। आइए तशरीफ रखिए। यही सवाल स्वाति साहब किधर गए? अच्छा जी स्वाति साहब, आप बड़ी खतरनाक बातें करते हैं, लेकिन हम आपसे सिर्फ खाने पीने का पूछ रहे हैं, तो उस हद तक ही रहिएगा। सर जी, अच्छा, चने की दाल, चूंकि चने और मसूर की दाल जेल में मिलती थी तो वही पसंद है जी। ओके चले जी, अब हम स्प्लिट स्क्रीन पे चलते हैं। इमरान खान साहब आगे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा कैमरा घुमाइए, क्राउड पे दिखाइए जज्बा, जुनून। शिद्दत से इंतजार था। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार। और हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा, हम छीन के रहेंगे। माशाल्लाह, अपने अपने मोबाइल फोन निकालें, जरा कप्तान को हम दिखाएं और कैमरा पूरा घुमाना है, क्योंकि खान साहब ना सिर्फ इस ग्राउंड में बल्कि बाहर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सब अपने अपने मोबाइल फोन निकालिए और दिखाइए कि इमरान खान से कितनी मोहब्बत करते हैं आप सब। कैमरा घुमाइए जी ऊपर से। जाग उठा है सारा वतन, पीछे तक एक साथ चलके। जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन साथियों, मुजाहिदों। आप हम ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, इमरान खान साहब से आपकी बात करवाते हैं। पहले खान साहब आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, फिर सवालात और जवाबात का सिलसिला होगा। और यहाँ पे नजम शराज हैं, जाहिद फखरी साहब हैं और भी हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। ओवर टू इमरान खान साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज बात शुरू करने से पहले ये चंद हमारे साथ इस मुश्किल वक्त में हीरोज निकले हैं। लेकिन जब जंग होती है ना, तो तगमे तभी दिए जाते हैं, जंगों के अंदर हीरोज निकलते हैं। मुश्किल वक्त के अंदर आपको नजर आता है कि कौन मुश्किल वक्त का आपका साथी है। आपको लोगों की नजरिए की समझ आ जाती है कि कौन नजरियाती तौर पे आपके साथ है और कौन आपके साथ फसली बटेरे हैं। ये बड़ा एक अल्लाह करम करता है कि जब एक इंसान को, एक मुल्क को, एक पार्टी को जब ये ऊंच नीच से गुजारता है, मुश्किल वक्त से गुजारता है, तो उसमें लोगों की पहचान सामने आ जाती है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा। क्यों अल्लाह हमारे ईमान को आजमाना चाहता है मुश्किलों से? क्योंकि वो जब इम्तिहान आता है, जब मुश्किल वक्त आता है, तो जो ईमान वाला आदमी है वो अल्लाह पे ईमान रख के मुश्किल वक्त पे सब्र करता है। क्योंकि कुरान की आयत है, हर मुश्किल के बाद मैं आसानियां पैदा करता हूं, तो उनमें सब्र आ जाता है कि हां ठीक है, मुश्किल वक्त है, मैं इससे निकल जाऊंगा। वो फिर हर किस्म की मुश्किल बर्दाश्त करता है। और हमेशा याद रखें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी जिंदगी, उनका शरिया, उनकी सुन्नत, क्योंकि दुनिया में उनसे कोई अजीम आदमी नहीं आया। अल्लाह जब कहता है उनके रास्ते पे चलो, आपकी बेहतरी के लिए कहता है। अल्लाह को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। हमारे लिए यह है कि जब आप उनकी जिंदगी से सीख के अमल करोगे तो आप जिंदगी में ऊपर चले जाओगे। जो माशरा उनकी सुन्नत पे चलेगा, चाहे वो मुसलमान हो या नहीं हो, वो ऊपर चला जाएगा। क्योंकि वो रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। ये आपने बड़ा गौर से समझना है। अगर यहूदी ज्यादा उन्होंने जो हमें हुक्म किया कि कैसे जिंदगी गुजारनी, अगर वो चलेंगे वो ऊपर चले जाएंगे। अगर आज स्कैंडिनेविया के अंदर खुशहाली है तो वो ज्यादातर उस मदीना की रियासत असूलों पे चल रहे हैं, वो हमारे से ज्यादा आगे हैं। वो अदल और इंसाफ है, इंसानियत है, फलाई रियासत है, मेरिट है।
وہاں ظلم نہیں ہے, وہاں قبضہ گروپ نہیں ہے. اللہ کا برکت آ جاتی ہے ان معاشروں کے اوپر, کیونکہ وہ بھی رب العالمین ہے, سب انسانوں کا رب ہے. تو یہ آپ نے بات سمجھنی ہے. علامہ اقبال یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے لوگوں کو, ہندوستان کے غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کرتے رہے, بتاتے رہے کہ ایک دفعہ ہم عظیم قوم تھے. کیوں تھے؟ وہ کون سی صفتیں تھیں جنہوں نے ہمیں عظیم قوم بنایا, اور آج ہم کیوں غلام بنے ہوئے ہیں, چونٹیوں کی طرح زمین میں پھر رہے ہیں جن کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. تو آج بھی جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان معاشرہ صرف اوپر تب جاتا ہے جب وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر چلتا ہے. اور وہ اصول سب کو آپ کو پتا ہونا چاہیے, میری پارٹی کو, میرے کارکنوں کو, سب کو وہ اصول پتا ہونے چاہیے کہ وہ کیا اصولوں کے اوپر انہوں نے وہ ایک ریاست قائم کی تھی جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے. سب سے پہلے عدل اور انصاف, سب سے پہلی چیز. انسانی معاشرہ بنتا ہی نہیں ہے اگر عدل اور انصاف نہ ہو. وہ پھر جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے. مائٹ از رائٹ, طاقت کی حکمرانی جو آج پاکستان میں ہے. یاد رکھیں ہم انصاف کے انڈیکس میں 140 ملکوں میں پاکستان 129 پہ ہے, صرف 11 کم ہے سب سے نا انصافی والے 140 ملکوں میں. ہمارا وہ آج حالات ہے, اور اسی لیے آج خوشحالی پاکستان میں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ خوشحال نہیں ہوتا. دوسری چیز فلاحی ریاست, انسانیت کا نظام, جدھر ہم پرواہ کرتے ہیں, ہمارے میں رحم ہوتا ہے, ہمارے میں احساس ہوتا ہے کمزور طبقے کا. جو پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں ریاست نے ذمہ داری لی اپنی بیواؤں کی, اپنے یتیموں کی, اپنے غریبوں کی, اپنے بوڑھوں کی, معذوروں کی, یہ کبھی پہلے نہیں تھا. پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں کیسی انسانیت پہ ریاست بنی تھی. اور تیسری چیز لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. کوئی بھی مسلمان ریاست جو لا الہ الا اللہ پہ کھڑی ہوتی ہے وہ کبھی کسی سپر پاور کے سامنے نہیں جھکتی, وہ غلامی کسی کی نہیں کرتی. وہ آزاد اور خوددار قوم ہوتی ہے, اس میں غیرت ہوتی ہے. وہ ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں دوسرے ملکوں کے سامنے. ان کا پرائم منسٹر جا کے یہ نہیں کہتا کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں, وہ یہ نہیں کہتا. وہ خوددار ہوتا ہے, کیونکہ ہم کس کی امت ہیں؟ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی ہم امت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب 2 سپر پاورز تھیں, ابھی مسلمان تھوڑے سے ہی تھے, وہ خط لکھتے ہیں ایک سپر پاور کے سربراہ کو اور پھر دوسرے سپر پاور کے سربراہ کو, اور اناؤنس کرتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں, اور اگر تم مانو گے تو اپنی بہتری کے لیے اس پیغام پہ چلو گے, نہیں تو تم تباہ ہو جاؤ گے. اور وہی ہوا. 10 سال اس خط کے بعد دونوں سپر پاورز نے گھٹنے ٹیک دیے. یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے, یہ کبھی ایسے نہیں ہوا. اس لیے میرے تحریک انصاف کے کارکنوں, ہمیشہ سمجھنا کہ آپ ایک نظریاتی لوگ ہیں. آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کا نظریہ ہے جو کہ جس میں یہ پاکستان جس نظریے پہ بنا تھا, اسلامی فلاحی ریاست, اور وہ تھی ماڈل تھا مدینہ کا. اور آپ کا نظریہ آج یہ ہے کہ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں. ہم حقیقی آزادی کا مطلب کیا, یہ آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے. آزاد وہ معاشرہ ہوتا ہے جدھر لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اس کی عدلیہ, جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. ہمارے حقوق کی حفاظت جب ایک ملک کی عدلیہ اور اس کے آئین کرتا ہے تو ہمیں آزاد ہو جاتے ہیں. آج مغرب میں کیوں پاکستانی جاتے ہیں, یورپ میں, امریکہ, انگلینڈ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں اگر آپ ان کے قانون کے اوپر چلیں, ان کے آپ ٹیکسز دیں, آپ آزاد ہو جاتے ہیں. کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا, آپ کو ریاست پروٹیکٹ کرتی ہے. بے شک آپ دوسرے ملک سے آئے ہوں,
आपको प्रोटेक्शन देती है। कोई आपकी जमीनों पे कब्जा नहीं कर सकता, कोई आपके घर से बाहर नहीं निकाल सकता, कोई स्टेट आके आपसे रिश्वत नहीं मांगती, थानों में जलील नहीं होते, वहां थाना कचहरी की पॉलिटिक्स नहीं है, प्रोटेक्शन है, क्योंकि वहां इंसाफ है। सो मेरे कारकुनों तहरीक इंसाफ की याद रखें, आजादी तब तक नहीं आएगी जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं आता, और इंसाफ तब आएगा जब कानून के सामने सब एक बराबर होंगे। यह नहीं है कि ताकतवर डाका मार के एनआरओ ले ले, रात को वीगो डाले आए और आपको उठा के ले जाएं, जिस तरह हमारे बेचारे अतारुमान को, हमारा एक यंग लड़के को उठा के ले गए, अभी तक 6 दिन हो गए, पता नहीं चला किधर गया है। ये किसी माशरे में नहीं होता। ये नहीं होता कि आजम स्वाति एक ट्वीट करे और उसको पकड़ के उठा के ले जाएं और सबके पोते पोतियों के सामने मारें और फिर उसको जाके टॉर्चर करें, नामालूम अफराद पकड़ के उसको टॉर्चर करें, या शहबाज गिल को नंगा करके उल्टा लटकाएं। ये कहीं किसी माशरे में किसी की जुर्रत नहीं जिधर इंसाफ होता है। जब एक माशरे में जुल्म होता है तो कोई हिफाजत नहीं करता कमजोर की। एक्स प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करने की कोशिश की जाती है, गोलियां लगती हैं, अपनी एफआईआर नहीं कटवा सकता, क्योंकि ताकतवर लोग वो कानून के ऊपर हैं, वो कानून के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। यहां जब तक आप इन सबको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, ये मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं फिर से अपनी बात खत्म करता हूं, ये याद रखें कि मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले जो बात कही थी कि कौमें तबाह हो जाती हैं जब ताकतवर जुर्म करता है तो उसको पकड़ा नहीं जाता, वो पकड़ नहीं सकती, और सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती हैं, वो तबाह हो जाती हैं। ये सारे याद रखना, ये हदीस अपने ज़हन में डाल लो। आज अगर दुनिया में देख लें, जो कौमें तबाह हो रही हैं वह इंसाफ नहीं है, जो कौमें खुशहाल हैं सारी जगह के ऊपर आपको इंसाफ नजर आएगा। उनका कानून बड़े ताकतवर और कमजोर एक बराबर समझता है, इसलिए वहां खुशहाली है। हमारे लोग किस तरह की क्योंकि वो जाना चाहते हैं उन मुल्कों में जहां इंसाफ है, क्योंकि जिन मुल्कों में ना इंसाफी है वहां तो गुर्बत है। सारी दुनिया उठा के देख लें। तो ये है हमारी जंग। मैं सिर्फ आपको बार बार बताना चाहता हूं, आप तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, आप नजरियाती लोग हैं। हकीकी आजादी है क्या? हकीकी आजादी आज हम सब जो जद्दोजहद कर रहे हैं, हम अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने की इसलिए हम लगे हुए हैं सब। हम ये जो सारी हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, जो जिले शाह ने शहादत दी, ये सारे उस चीज के लिए हैं। जो हमारे लोगों ने जेलों में वक्त गुजारा, जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, हम एक आजादी की जंग लड़ रहे हैं। और ये हमारी जंग वो है जो एक पुरअमन जंग है। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, बंदूकें नहीं उठा रहे। हमारी कोशिश है कि बैलेट के जरिए, वोट के लिए जरिए हम इस मुल्क में तब्दीली लेके आए। और मुश्किल यह है कि जो हमारे मुखालिफ हैं, वो जिस तरह बचपन में ज़मान पाक में बार बार कहता हूं हम क्रिकेट खेलते तो वापस आओ मैच खिलाना चाहते हैं, हम भाग रहे हैं सारे। और मैं ये भी आपको बता दूं, शुरू हुए इनको ईसीएल पे रख के इलेक्शन करवाना, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि मुल्क से भाग जाएं। और मैं आखिर में फैसल जावेद आपको, इब्रार आपको और नजम शिराज आपको खास तौर पे मैं आज आपको स्पेशली खराज तहसीन पेश कर रहा हूं कि आपने आके लोगों को जिस तरह मोटिवेट किया, लोगों को आपने एंटरटेन किया। नजम शिराज जिस तरह आपने रमजान की इफ्तारियों के ऊपर नाते पढ़ी, हम पढ़ी, लोगों को बताने की कोशिश करी कि हम इंसान और जानवर में फर्क क्या है।
इंसान तो दुनिया, जानवर तो दुनिया, जानवर भी आके दुनिया में वो भी खा पी के बच्चा पैदा करके चला जाता है। इंसान तो वो होता है जिसका एक बड़ा मकसद होता है जिंदगी में। जब तक आप में बड़ा मकसद नहीं, हम जानवरों के लेवल की जिंदगी गुजारते हैं। तो इसलिए नजम ने पूरी कोशिश की लोगों को जगाने के लिए, अपना मकसद बताने के लिए। कुरान में जो है कि अपना मकसद पहचानो, अल्लाह ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है, और इस वक्त हम सब का मकसद हकीकी आजादी है। जी फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, आपकी इस मोटिवेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दरखास्त करूंगा जाहिद फखरी साहब तशरीफ लाइए। खान साहब, इन्होंने हमेशा से जिस कदर दिल से, दर्द से आपके बारे में पोइट्री की, पाकिस्तान के लिए एक दर्द रखते हैं, और हमारे बीच आज हमारे लिए खुशी का ये बायस है कि ये हमारे बीच मौजूद हैं। तो एक बार आप सब भरपूर तालियां जाहिद फखरी साहब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहेब, मैं इस कौम का अदना सा शायर आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस हजूम को एक कौम बना दिया है। अब ये तीर कमान से निकल चुका है, अब ये वापस नहीं जाएगा, अपने निशाने पे जाके लगेगा। हमारे सामने मंजर बदलने वाला है, चिराग रहने दो, सूरज निकलने वाला है। फितना गरों के सामने दीवार कौन है, उस जैसा मेरे देश में जीदार कौन है। नारे तकबीर। फितना गरों के सामने दीवार कौन है, उस जैसा मेरे देश में जीदार कौन है। आंखों में बढ़ रहा है वो ख्वाबों की रोशनी, आंखों में बढ़ रहा है वो ख्वाबों की रोशनी। सोए हुओं के दरमियां बेदार कौन है, कुर्सी उसे अजीज नहीं है अजीज कौम। हम गमजदों का हामियों दिलदार कौन है, और ठोकर वो मार सकता है इस तख्तो ताज को, उस जैसा मेरे दौर में खुददार कौन है। और असद भाई, उम्मीद की किरण है वो कहतुर रजाल में, इमरान जैसा साहिबे किरदार कौन है। रोशनी के शहर का रास्ता नजर आया तो है, अब मुजस्सर काफले को राहबर आया तो है। अब न तुमसे रुक सकेगा मौसमे गुल का सफर, पेड़ की हर शाख पे देखो समर आया तो है। वो जिन्हें एहसास था हमवार सथे आब है, उनकी कश्ती के लिए पहला बंवर आया तो है। और बेखबर थे लोग अपने बाजुओं के जोर से, अब हमारे दरमियां एक बाखबर आया तो है। और खुश्क साहिल पे खड़े डरते रहे लहरों से लोग, कोई बिफरे पानियों का हम सफर आया तो है। और कोई तो उठा है फखरी सोच में सूरज लिए, कोई अपने जहन में लेकर सहर आया तो है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। एक मिनट ये जरा बस ये। अच्छा जी, हाथ उठाकर तालियों की गूंज में बताइए कि कितना प्यार करते हैं आप इमरान खान से। ये एक नज्म जो बहुत वायरल हुई,
जिसे इंसाफ वालों ने ट्वीट किया, जो इसके पार है मंजर दिखा के छोड़ूंगा, मैं दरमियान का पर्दा हटा के छोड़ूंगा। यह खान साहब की तरफ से है, जो इसके पार है मंजर दिखा के छोड़ूंगा, मैं दरमियान का पर्दा हटा के छोड़ूंगा। जो कागजों पे मेरी मौत रोज लिखते हैं, मैं उसकी सुर्ख लकीरें मिटा के छोड़ूंगा। जो कागजों पे मेरी मौत रोज लिखते हैं, मैं उसकी सुर्ख लकीरें मिटा के छोड़ूंगा। जो मुझ पे छुप के कई वार करता रहता है, मैं उस गनीम की नींदें उड़ा के छोड़ूंगा। खुदा ने रखी है ताबीर मेरी मुट्ठी में, जो ख्वाब देखा है सबको दिखा के छोड़ूंगा। कहा नहीं था कि मुझसे मुकाबला न करो, अब एक को फखरी रुला के छोड़ूंगा। पाकिस्तान, इमरान खान, पाकिस्तान, नाराए तकबीर। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है, हर एक मौजे बला की राह में हायल मदीना है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जाहिद फखरी साहब। और अब थोड़ी देर में इमरान रियाज भी यहां आने वाले हैं, तकरीबन पहुंच गए। जी खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे? जी फैसल, मैं ये आज जो मेरे कारकुन बैठे हुए हैं सामने और खास तौर पे मेरी ख्वातीन बैठी हैं, मैं 2 वीडियोस दिखाना चाहता हूं सबको। और वो मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि मुझे जो अगवा करने की कोशिश थी, अरेस्ट करने की कोशिश नहीं थी, गैर कानूनी तौर पे इन्होंने पुलिस भेजी मुझे अगवा करने के लिए। क्योंकि मैंने कभी भी आज तक 50 साल से मुझे ये कौम जानती है, मैंने कभी कोई गैर कानूनी चीज इस मुल्क पे नहीं की। तो जो उन्होंने कोशिश की और जिस तरह लोग खड़े हुए, मेरी नौजवान और मेरी ख्वातीन, मैं सिर्फ 2 वीडियोस दिखाना चाहता हूं अगर ये तैयार हो तो। पहले मैं दिखाना चाहता हूं, समाबिया यहां बैठी हुई है, ये हमारी बड़ी जुनूनी कारकुन है और मैं इसके नजरियाती औरत है ये। मैंने इसको 126 दिन धरने में भी देखा, बड़ी मेहनत की। तो इसके ऊपर जो इन्होंने वारदात की, ये हमारी अपनी पुलिस भी और हमारे रेंजर्स ने जो किया, मैं चाहता हूं पहले सारी कौम देखें और ये समाबिया का इसकी जो दिलेरी देखें इसकी, कि उस टाइम पे जब टेयर गैसिंग हो रही थी और जिस तरह की फौज आई हुई थी हमें मेरा ज़मान पाक फतह करने। तो अगर वो वीडियो आपकी है तो समाबिया वाली प्लीज वो वीडियो चलवाएं। फैसल अगर वो है अभी। जी अब थोड़ी देर में हम चलाते हैं खान साहब, अभी फिर रेडी करते हैं इसको। अच्छा, वो जब तक रेडी नहीं होती तो दूसरी जो वीडियो फैजान वाली है वो नौजवानों के लिए मैं दिखाना चाहता हूं। हाँ जी, वो फैसल बस रोकते। जब तक आप समाबिया की ढूंढ रहे हैं, मैं ये सिर्फ आपको ये क्यों दिखाना चाहता हूं कि ये वो नौजवान है, ये हमारी पार्टी का भी हिस्सा नहीं है, ये कारकुन भी नहीं है, लेकिन ये सब आए यहां एक मकसद के लिए कि ये जो हो रहा है पाकिस्तान में जुल्म और नाइंसाफी, और ये उसके सामने खड़ा हुआ। और ये और बाकी नौजवान, मैं ये जो दिखाना चाहता हूं वो ये कि जब एक कौम के अंदर नौजवानों में इस तरह का जज्बा आ जाता है आजादी का, फिर उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। फिर उस कौम को, जिस तरह इन्होंने कहा कि फखरी साहब ने कहा कि जब तीर निकल जाता है कमान से, जब एक आइडिया, एक नजरिया आवाम के अंदर आ जाता है, और इस तरह के नौजवान जब खड़े हो जाते हैं कि सारी रात टेयर गैस शेलिंग की, भारी फौज दोनों तरफ से, रेंजर्स, पुलिस, जिस तरह उन्होंने हमारे ऊपर, और जो इन्होंने वाटर कैनन इस्तेमाल की, और ये कई घंटों की जद्दोजहद के बाद ये नौजवान का जज्बा देखें
کہ یہ سارے بھنگڑا ڈال رہے ہیں, اوپر پانی پھینک رہے ہیں, ٹیئر گیسنگ اتنی تھی. تو جب ایسا جذبہ ہو نوجوانوں, وہ قوم کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. وہ قوم ہر مشکلوں کا سامنا کر سکتی ہے. اور یہ اب اگر سمابیہ کا دکھائیں جی دکھائیے جی. اچھا, یہ میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں, سماویہ بھی یہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں. میں یہ جو آپ کو یہ سین دکھا رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ دیکھیں کہ سمابیہ دیکھ رہی ہے, لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آ رہی تھی. پتہ ہے کہ وہاں پولیس کھڑی ہے سامنے, پتہ ہے کہ ٹیئر گیس شیلنگ اور سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہ پیلٹ گنز مار رہے تھے. یہ جو بندوق تھی اس میں پیلٹس تھے. وہ دیکھ رہا ہے, دیکھیں اس آدمی کو کہ اس کو شرم نہیں آئی کہ خاتون دیکھ رہا آتے ہوئے, اور وہ کس سے آرڈر لے رہا تھا کہ خاتون کے اوپر اس نے, اس کی 2 جگہ سمابیہ کے پیلٹ گنز لگیں, اس کی 2 جگہ چھرے آ کے لگے. وہ دیکھیں کہ وہ کیا اس کے پاس ہتھیار تھا, وہ کچھ کیا کر رہی تھی, وہ کوئی خطرہ تھا. وہ سامنے بیٹھ کے اس کو مار رہا ہے پیلٹ گنز. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے حیوانوں سے ہمارا مقابلہ ہے. کوئی دنیا میں ملک اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح سختی نہیں کرتا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم کوئی مجرم نہیں تھے, کوئی دہشت گرد نہیں ہے. ان کے اوپر اس طرح سیدھی پیلٹ گن چلانا, اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سمابیہ جو آپ کے سامنے سکرین پہ ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہی ہے, وہ کوئی ہتھیار پکڑ کے نہیں آ رہی, اس کے اوپر مارے. اس طرح کے حیوان تھے یہ. مجھے شرم ان پہ یہ آتی ہے کہ یہ پاکستانی ہے, اور یہ ان کی اوتھ ہوتی ہے کہ آپ کوئی غلط کام نہ کریں, ان لافل چیز نہ کریں. کون آپ دیکھیں فرانس کے اندر آزاد ملک ہے, وہ سامنے ان کو آ کے پیٹرول بمز مار رہے ہیں پولیس کو. وہ پولیس کو اٹیک کر رہے ہیں, پولیس ان کو اٹیک نہیں کر رہی. وہ پیٹرول بم مارتے ہیں. آپ بتائیں, کبھی دیکھا کسی کے ہاتھ میں بندوق؟ کسی نے ان کے اوپر کوئی فائرنگ کی ہے آج تک؟ یا ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور بندوقیں لے کے آ گئے ہیں. اور میں سمابیہ کا پہلے یہ کہوں کہ اس کی دلیری دیکھیں کہ یہ سارا دیکھ کے یہ مدد کرنے آ رہی تھی. وہاں لوگ ٹیئر گیس کے کوئی بے ہوش ہوئے تھے. اور دوسری چیز, وہ جو نوجوان آیا ہمارا عثمان نے, جس طرح آیا اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے, یہ بھی جذبہ دیکھیں, یہ کسی اور جماعت میں نہیں آپ کو ملے گا. وہاں تو جلسے کرنے کے لیے قیمے کے نان دینے پڑتے ہیں, اور یہاں آپ دیکھیں کہ وہ دیکھ رہا پولیس کا حملہ ہو رہا ہے, اور وہ آ کے سمابیہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. میں اس جذبے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, قومیں ایک ذہن میں ڈال لینا پاکستانیوں, یہ ایڈ لے کے, امداد لے کے, بھیک مانگ کے, لوگوں کے پیر پکڑ کے, سپر پاورز جڑ کے, ان کی جنگوں میں شرکت کر کے آج تک کبھی کوئی قوم نہیں بنی. قوم بنتی ہے جذبے سے, قومی غیرت سے. جب وہ قوم فیصلہ کرتی ہے, ایک نظریے پہ کھڑی ہو جاتی ہے, تب قوم اوپر آتی ہے. دنیا میں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں لیکن پھر سے کھڑی ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کے اندر ایک کوئی نظریہ ہوتا ہے, کوئی ان میں قومیت ہوتی ہے. جرمنی, جاپان, دوسرے جنگ عظیم کے بعد ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی, 10 سال میں پھر وہ کھڑے ہو گئے, کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو ہمیں دیکھیں کہ ہم 30 سال سے بیکاریوں کی طرح بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. کبھی ادھر جاتے ہیں کہ جی میں جی مانگنے نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. پرائم منسٹر یہ کرتا ہے, مجھے بتائیں وہ قوم کی غیرت کدھر چلی گئی؟ جب ہم بھاگے پھر رہے ہیں, کبھی کسی سے پیسے, قومیں اور اپنے ساروں نے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں, یہاں سے چوری کر کے ڈالرز باہر لے گئے ہیں, بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں, اور وہاں جا کے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دے دو. وہ لوگ حقارت کی نظر سے ان کو دیکھتی ہیں, اور ان کی وجہ سے ہماری قومی غیرت بھی ختم ہوتی ہے. ہم اس لیے جو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں,
उसमें इस तरह की खातून है समाबिया की तरह, वो जीशान की तरह नौजवान हैं, इनके ऊपर, इस नजरिए के ऊपर कौम खड़ी होगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये मेरा ईमान है कि ये आप देखेंगे, यही पाकिस्तान एक दिन इंशाल्लाह दूसरों की इमदाद किया करेगा बजाय दूसरों से पैसे मांगने के लिए। और हम आपके सवालात भी लेंगे, आपने अपने नाम भेज दिए हैं, और लेकिन उससे पहले मैं नजम शराज से दरखास्त करूंगा आप तशरीफ लाएं और हमें एक कलाम सुनाएं। नजम साहब, आज इमरान खान साहब ने भी आपको मोटिवेट किया, क्या जज्बात है आपके, और अपना कलाम सुनाइएगा। जज्बात मेरे बहुत मैंने काबू किया अपने ऊपर, क्योंकि मोहब्बत तो हम बचपन से ही करते आए हैं इमरान खान से, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के इतने दुख दर्द तकलीफों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इमरान खान के जरिए पहुंचेगा। और ये इमरान खान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक पैगाम भी है अल्लाह का, और एक रिमाइंडर भी है कि अगर अभी नहीं जुड़ेंगे तो फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जो पिछले साल से अब तक कारकुनान ने किया है, पाकिस्तानियों ने, भाइयों बहनों ने जो रेजिलियंस दिखाई है, जिस तरह डटे हैं, उसके लिए लिखना बहुत मुश्किल है, जितना भी लिखो कम है। लेकिन मैंने कुछ नया लिखा है और वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। जो दीवारों पे भी बैठे हुए हैं, अब बैठने का वक्त नहीं है, क्योंकि ये नौजवानों का जज्बा तो मैंने देख लिया है, क्योंकि इस तराने की एनर्जी जरा हाई है और यहां नौजवानों की एनर्जी कैसी है। तो जब नौजवानों के कप्तान की एनर्जी हाई है, सबसे ज्यादा फिट तो वो खुद है, तो क्या हमारी एनर्जी लो हो सकती है? सो आइए फिर, हस्बी अल्लाह रब्बू, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तोड़ेंगे सब जंजीरें, बदलेंगे हम तकदीरें, कर लो जो भी तदबीरें, डट के खड़े हैं जीतेंगे। तोड़ेंगे सब जंजीरें, बदलेंगे हम तकदीरें, कर लो जो भी तदबीरें, डट के खड़े हैं जीतेंगे। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। इस धरती पे कुर्बान हुए कितने हंसी मेरे नौजवान, गाजियों शहीदों के लहू से ही है जावेदा। कितनी बेदर्दी से लूटा अल्लाह के नाम को, मिलकर अब मिटाना होगा जुल्म के निजाम को। धरती के हम रखवाले, आजादी के मतवाले, कदरों को हम संभाले, डट के खड़े जीतेंगे। तोड़ेंगे सब जंजीरें, बदलेंगे हम तकदीरें, कर लो जो भी तदबीरें, डट के खड़े जीतेंगे। गुलामी में न कामापी है शमशीरें, न तदबीरें, ज़ौक़े यकीन पैदा हो तो कट जाती है तकदीरें। काम न आएगा तेरा महल मकान, आजादी का सौदा करके बनता है गुलाम। रब को सजदा 100 सजदों से करता है आजाद, ईमान की ताकत से होगा मुल्क ये आबाद। या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद,
बहुत आला, भरपूर तालियां नजम शिराज के लिए। खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहां पे मौजूद है। मैं चाहता हूं आप सब मिलकर इनको खराज तहसीन पेश कीजिए। भरपूर तालियां इनके लिए। और यहां जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके लिए खास तौर पे तालियां। और जो नौजवान है यहां पे, माशाअल्लाह। अच्छा जी, आइए जी सवाल लेते हैं अब हम। और पहला सवाल हम लेंगे। आइए, आप आइए, जिन्होंने ट्रिब्यूट दिया था जिले शाह को, आप आए और इनमें से एक आप निकालिए नाम। और ये नाम रसूल शाहीन फातिमा। जी, पहले खवातीन की बारी है, फिर हम आएंगे आपकी तरफ। शाहीन फातिमा, शाहीन फातिमा साहिबा, शाहीन फातिमा साहिबा। अजरा अहमद जी, आप दीजिए माइक इनको जल्दी। इब्रार भाई तो बड़ा लेट आए। ओ, अबरारुल हक पहुंच गए। अबरारुल हक। और कल अबरार आपने जो लॉन्च किया था, आज आपने पहले तो वो सुनाना है। जी, सवाल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ईद मुबारक। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। और उसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि इंशाल्लाह थर्ड की मेजॉरिटी से आने वाले हैं और आ जाएंगे, उसके बाद आपने इदारों के बारे में सोचा कि उनको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, पहले तो कोशिश इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह देता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। और ये इलेक्शन में ये सारा पाकिस्तान जोर लगाएगा इस इलेक्शन में, क्योंकि सबको पता है कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल का इलेक्शन होने वाला है। ऐसा कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह सर, अब मुझे तो अपनी कौम को मैं जानता हूं। 27 साल पहले पार्टी शुरू की थी और मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि कौम को जागते हुए, और जो भी फखरी साहब ने बात बिल्कुल ठीक की कि हम एक हजूम को कौम बनते देख रहे हैं, और जब वो कौम बन जाती है, फिर से मैं आपको कहता हूं, कोई उसको शिकस्त नहीं दे सकता। देखें, हमने करना क्या है, हमने सिर्फ एक काम करनी है। और फिर कभी एक चीज ना भूलें, एक कौम किसी मकसद के लिए बनी थी। हमारे फाउंडिंग फादर्स, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से एक डॉक्यूमेंट बनाई थी जिसको कहते हैं करारदाद पाकिस्तान, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसमें हमने, हमारे जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, उन्होंने इसका बताया था कि पाकिस्तान कैसा होगा, और वो था इस्लामी फलाई रियासत। और जब हम उसकी बात करते हैं तो वो है मदीना की रियासत के ऊपर। मदीना की रियासत में सबसे पहली चीज क्या की गई थी? दुनिया के सबसे अजीम लीडर ने सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया था। अगर हमने पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है तो हमें अदल और इंसाफ कायम करना पड़ेगा, नहीं तो यह मुल्क अब निकल ही नहीं सकता इससे। जिधर इन्होंने पहुंचा दिया है, आप जो मर्जी आप हम कहते हैं ना कि जी माइशत को ठीक करना है। माइशत भी एक माहौल के अंदर होती है। वो माहौल के अंदर जब तक इंसाफ नहीं होता, माइशत ऊपर नहीं जाती। जितने भी मुल्क इस वक्त खुशहाल हैं, उधर सब में अदल और इंसाफ है। उनका जो इंसाफ का निजाम है वो सब ऊपर है। मैं मिसाल देता हूं फिर से डेनमार्क की। डेनमार्क 140 मुल्कों में नंबर 1 है इंसाफ पे। पाकिस्तान 140 मुल्कों में 129 है। इसका मतलब हम खुशहाल नहीं हो सकते। डेनमार्क 68,600 उनकी औसत आमदनी है, पाकिस्तान की 1,600 है। सोच लें कि वो कितना फर्क है, क्योंकि वहां इंसाफ है, यहां नहीं है। तो उस इंसाफ का तकाजा यह कहता है, कोई इदारा मुल्क में कानून के ऊपर नहीं बन सकता, कोई इंसान कानून के ऊपर नहीं जा सकता, कोई एनआरओ नहीं ले सकता।
किसी को इजाजत नहीं है कि वीगो डालों में उठा के लोगों के घरों में घुस के लोगों को निकाला जाए, पकड़ा जाए। किसी को इजाजत नहीं चाहिए कि लोगों को अगवा करके ले जाएं और अली अमीन की तरह कभी किधर, कभी उसको लेके जा रहे हैं बखर है, फिर लाहौर लेके आए, फिर उसको शिकारपुर ले जाएं। ये जिन माशरों में इंसानी हुकूक की हिफाजत करता है, उनका इंसाफ का निजाम, वहां ये कभी जुल्म नहीं हो सकता। सो इसलिए पहली चीज हमने कायम करनी है कि सारों को, इदारों को, सबको कानून के नीचे लेके आना है। अगर ये हमने ना किया, इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। ये है मुल्क की, जिसको हम कहते हैं इसकी फ्यूचर की जंग है। अब ये हमारा वो अंग्रेजी में कहते हैं द बैटल फॉर द सोल ऑफ पाकिस्तान। हम अपने मुल्क की रूह के लिए, मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं, और वो होगी, शुरू होगी। हम जो अपने मुल्क की रिवाइवल शुरू करेंगे, जब हम उसको उठाना शुरू करेंगे, बुनियाद रखी जाएगी अदल और इंसाफ पे। अच्छा, अब हम एक तराना सुनेंगे और उसके बाद फिर आपकी तरफ आएंगे। जो यहाँ पे नौजवान है जिन्होंने सवाल पूछने, आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले एक तराना सुनते हैं। मैं दावत दूंगा यहाँ पे उमर मलिक, आपको तशरीफ लाइए। उमर मलिक बरतानिया में होते थे और इमरान खान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से, और ये पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। और इन्होंने एक कमाल का एक गाना गाया है, बनाया है कि मेरा लीडर मेरे मुल्क में रहता है। जी उमर। जिस पे हम तो फख्र कर सकते हैं, लेकिन वो लोग फख्र नहीं कर सकते जिनके लीडर बाहर भागे हुए हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान गोलियां खाकर भी अपने लोगों में, अपने मुल्क में मौजूद है, और एक है जो कि गोलियां दे के फरार हो गया है। आप कौम का फख्र है, और इंशाल्लाह हम जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की पहचान है आप। तो मैं पहली बार जब मुल्क से बाहर गया और अपने काम के सिलसिले में, तो वहां मुझे एक ऑस्ट्रेलियन मिला। उसने मुझसे पूछा कि वेयर यू फ्रॉम, आप कहां से हो? तो मैंने कहा पाकिस्तान। कहता है कि ओ यू आर फ्रॉम इमरान खान कंट्री, क्या आप इमरान खान के मुल्क से हैं? ये उस वक्त इमरान खान वजीर आजम भी नहीं बने थे, बड़ी पुरानी बात कर रहा हूं। तो पाकिस्तान की पहचान है आप, इमरान खान। अब हम आगे बढ़ेंगे और सवाल अब आपका लेते हैं इस तरफ से। जी आइए बेटा, आप आइए और एक नाम निकालिए आप। एजाज खान सिकंदरी बनू। हाँ, इधर माइक पे आइए, माइक पे जल्दी। आपका क्या नाम है? अच्छा जी, चले एजाज खान सवाल कीजिए। इमरान खान साहब आपको सुन रहे हैं जी। बस ठीक था। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो सर आपको ईद मुबारक। सर हम बन्नू से आए हुए हैं, मेरा नाम एजाज खान है, और सर मेरा कोई सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। जिस तरह सबको पता है अली अमीन खान गंडापुर हमारे अब मुश्किल में है। हमने 25 तारीख को कॉल दी हुई है अपने रीजन के शाहिद खान खट्टक साहब की तरफ से। तो हम चाहते हैं कि सर आप भी पूरे मुल्क में अली अमीन साहब के लिए कॉल, स्ट्राइक की कॉल दें सर। बहुत शुक्रिया। देखें, अली अमीन ये मेरा एक ऐसा सिपाही है जो हर मुश्किल वक्त पे मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैं जब मुझे भूलता नहीं है कि जब इन्होंने हमें पहली दफा शेलिंग की, जब हम धरने पे थे 2014 में, तो सारी रात तब भी शेलिंग हुई। तो सुबह को जब मैं वो कंटेनर के ऊपर चढ़ा तो पहली रोशनी थी। तो उस वक्त मुझे याद है कि हमारे अब 3 लाशें उठाई, मेरे सामने लाशें उठाई थी जो कि रात उस शेलिंग के अंदर लोग शहीद हो चुके थे। लेकिन जो मैंने चंद लोग कंटेनर के इर्द गिर्द खड़े देखे, उनमें से एक अली अमीन था। और वो मैं ये भूल नहीं इसलिए सकता कि ये वो मुश्किल वक्त के लोग, जब सबसे ज्यादा प्रेशर था तो वो खड़ा था साथ, और उन्होंने उसको उठाया इसलिए अली अमीन को उठाया है कि उनको पता था कि ये मेरा एक वो सिपाही है जो
हर वक्त मुझे पता ये मेरे साथ खड़ा होगा, और इसीलिए उसको ये चक्कर दे रहे हैं, एक मुझे भी पैगाम दे रहे हैं और मेरी पार्टी के लोगों को भी पैगाम दे रहे हैं कि शायद हम इसके लिए हम शायद हौसला हार जाएं या हम पीछे हट जाएं। मैं इन बेवकूफ अहमकों को बताना चाहता हूं कि आप तो हमारी पार्टी में और ज्यादा हमारा जज्बा बढ़ता जा रहा है। हम तो और जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं, हम तो और पुरअज़्म है कि हमने जब तक ऐसे जुल्म का मुकाबला नहीं किया तो इससे तो बेहतर है हम इसकी गुलामी करने से पहले तो मौत हमें आ जाए। मैं तो और कन्विंस्ड हूं। मैं देखें, इन्होंने मेरे पे पहले कातलाना हमला किया, वो आपको सबको पता है। उसके बाद 3 दफा और इन्होंने मेरे पे कातला हमला किया। 2 बार तो पता नहीं, क्योंकि वो और तरीके से जहर देने की कोशिश की। 1 दफा जो इन्होंने मुझे खास तौर पे प्लान किया था जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इस्लामाबाद में, इन्होंने इतनी तैयारी करके भेजा था, वहां सारे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नामालूम अफराद पहुंच गए। रात पहले वो वहां पहुंच गए, सीटीडी के कपड़ों में वो थे, वकीलों के वो कपड़े पहने हुए थे, अंदर से पूरी तैयारी की हुई थी, रेंजर्स सारे भरे हुए थे, और इनका पूरा प्लान बना हुआ था कि इन्होंने मुझे वहां मारना था। और उसके बाद एक और, अगर मैं वहां से निकलता, ऊपर इन्होंने 2 बंदूक वालों को बिठाया था, उन्होंने मुझे मारना था। और फिर तीसरा प्लान था कि अगर उधर से भी निकल जाऊं तो इन्होंने एक एक्सप्लोजन करनी थी। अल्लाह बचाने वाला है, जिंदगी मौत उसके हाथ में है। इन्होंने पूरी अपनी तरफ से प्लान किया हुआ था। और शर्म की बात यह है कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं और ये मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए। ये मुल्क के लिए नहीं कुछ कर रहे। इन सारों के जाती मफादात है कि किसी तरह इमरान खान को हटाओ, ताकि इलेक्शन वो कहीं जीत के आ गया तो वापस तो शायद हमारी पैसा पकड़ा जाएगा या हमारे मफादात के ऊपर कुछ नुकसान होगा। मैं आप सारी कौम को आज बताना चाहता हूं कि अगर मुझे ना इसकी फिक्र, एहतियात कर रहा हूं, लेकिन मारने की तो मुझे कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे फिक्र नहीं है, मैं एहतियात करना तो हमारा नबी का कॉल है कि अपनी एहतियात करो, लेकिन मैं ये आपको कह दूं कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं इन जालिमों का मुकाबला करूंगा। मेरे कभी, अगर इनके सामने सर झुकाने से बेहतर है कि मौत। और ये आप सुन लो कि कभी भी जब आप आजादी की जंग लड़ते हैं तो कोई आजादी प्लेट में आपको नहीं पकड़ाएगा, कोई जंजीरें खुद नहीं खोल देता, जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं, आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। जो लोग ये छोटा सा तबका ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है और कानून के ऊपर बैठा हुआ है, जो चाहे कर सकता है, जो मर्जी उठाए मारे, किसी को अरशद शरीफ को मरवा दें, आजम स्वाति जैसे एक सेनेटर को जो सब कुछ बाहर से कमाई करके पाकिस्तान आया, उसको नंगा करके उसको टॉर्चर करें, पूछने वाला कोई नहीं है। मैं अपनी एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा सका। ये जो लोग हैं जो यह कब्जा करके बैठे हुए हैं, याद रखें ये मुल्क को तबाह करने के चक्कर में अपने जाती मफादात के लिए। सो सारी कौम समझ जाए कि ये जब भी मैंने जिंदगी में कोई काम किया ना, मैं आपको एक ये भी कह दूं, मैं जब फैसला कर लेता हूं, और मैं ये चाहता हूं नौजवानों आप भी ये समझ जाएं, कामयाबी का एक राज है, जब एक फैसला हो जाता है फिर अपने से वादा करें कि या मैं कामयाब होगा या मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने हार नहीं माननी। ये जिंदगी में जब आप करेंगे, कोई किसी को शिकस्त नहीं दे सकता। जब वो ये फैसला कर लेता है कि या कामयाब होऊंगा या मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने लास्ट गेंद तक लड़ते रहना, मैंने हार नहीं माननी। ये मेरे कारकुनों, ये सारी हमेशा मेरी बात याद रखना। कभी कोई कामयाब नहीं होता जो आधा पैर इधर रखता है और आधा इधर रखता है। जब बुरा वक्त आता है तो वो सोचता है कि पीटीआई छोड़ के किसी और पार्टी में चला जाऊं, अच्छा वक्त आता है फिर कलाबाजी खा के वापस आ जाता है। ये कभी कामयाब लोग नहीं होते, ये लीडर्स नहीं होते। लीडर वो होता है जो फैसला करता है। जिस तरह तारिक बिन जियाद ने जब में उतरा तो किश्तियां जला दी कि या मैं कामयाब होऊंगा या मर जाऊंगा। ये आप में सब में, मैं आप चाहता हूं मेरे कारकुन सब याद रखें कि ये आप आजादी के लिए आप लड़ रहे हैं। ये जो ऊपर बैठा हुआ कब्जा ग्रुप, ये आराम से नहीं छोड़ेगा।
हम सब अज़म कर लें कि हमने आजाद, मुस्तकबिल तो सिर्फ आजाद कौमों का है, गुलाम तो अच्छे गुलाम ही बनते हैं। अच्छा भाई ये बताइए कि मोबाइल फोन तो सबके पास होगा, हाँ? तो उसमें फैसल जी, एक जी, मिनट फैसल, जी जी वो इब्रार को कहो, वो जो उसने आखिरी किया था ना, मैं तो हाँ उस वक्त मैंने वो पूरी तरह सुना नहीं, जी, वो जी। मैंने अपने कमरे से सुना था। अभी हमारा वही उसे क्या प्लान, वो जरा करे। बिल्कुल वही प्लान है। अच्छा अभी नजम ने बात की कि वो खान साहब को बचपन से सुनते आए हैं, तो अब मैं जिनको बुलाने लगा हूं अबरारुल हक को, हम अपने बचपन से सुनते आए हैं। इतना बूढ़ा तो नहीं है इब्रार, तुमने अब बचपन से बना दिए फैसल। और चुपो गन्ने तो हमें सुनाएंगे भरपूर तालियां अबरारुल हक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ईद का दूसरा दिन मुबारक। और आज खास बात यह है कि मेरी कोलीग यहाँ बैठी हुई है एचएसएन कॉलेज में। जब हमें पढ़ाने का मौका मिला तो मैं तो इनसे सीखता था। आई वॉज द यंगेस्ट टीचर एट दैट टाइम, और पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी है। मैं इनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और ये एक मैंने गाना लिखा था छोटा सा, इसका मकसद थोड़ा सा मैं जरा बैकग्राउंड जरा फिर आप लोगों को बता दूं कि आपको पता है कि एक हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई और उसको हम इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं। और उसके बाद वो आए तो ये कह के थे कि मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, ओए होए होए देखे ना ये खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हम आएंगे डॉलर हम 100 पे ले आएंगे, पेट्रोल नीचे आ जाएगा, लोगों की जिंदगियों में आसानियां हो जाएंगी। खान साहब ने कहा कि ये इस कौम के लिए नहीं आ रहे, ये वो जो इलेक्शन वोटिंग मशीन है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो खत्म करने आ रहे हैं। ये बाहर वाला वोट खत्म करने के लिए आ रहे हैं, ये अपने मुकद्दमात खत्म करने के लिए आ रहे हैं। और उनका मौकिफ था कि हम इसलिए आ रहे हैं कि हमने चीजें चेंज कर देनी है। अब जब वो आए तो आप लोगों ने देखा है महंगाई किधर गई, आसमान पे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उन्होंने खत्म की कि नहीं की? कर दी। फॉरेन वोट्स खत्म कराया कि नहीं? जो सारा खान साहब का हमारा वोट था खत्म कराया। और उसके बाद अब आज हमारा मुल्क देखें, आज अल्लाह के फजल से पॉलिटिकली तो हमें फायदा हुआ, लेकिन हमें तकलीफ ये होती है कि गरीब आदमी की जिंदगी खत्म हुई। हम इनको कहते हैं कि और तुम्हें बड़ा शौक था हुकूमत करने का, तो अब तुम्हें पता चला है अब तुम्हें रातों को नींद भी नहीं आती। सो उसमें अब रातों को तुम्हें नींद भी नहीं आती, तो फिर होर चुपो गन्ने बनता कि नहीं बनता कहना। और उसमें स्टार्ट में जरा सा वो एक, अभी जब इसका पूरा गाना आएगा, क्योंकि शुरू वाला पार्ट में जरा सा चेंज भी कर रहा हूं, उसमें वो एक बड़ी मासूमाना सी इनके साथ वो गुफ्तगू है कि इमरान खान बहुत गंदा है, जीत जाता है, इलेक्शन नहीं कराना था, डर लग रहा था, कांपे तांग ली थी, मेले छोने पॉले पीडीएम की कांपे तांग ली थी। आए जरा सुनते हैं। साडी पहुंच तो शौक हुकूमत पे सानू लैके चुपो गन्ने चुपो गन्ने चुपो गन्ने चुपो गन्ने चुपो गन्ने और चोरी दे। बार बार तुझे समझाया था खतरनाक हो जाएंगे तेरे वास्ते, बार बार तुझे समझाया था खतरनाक हो जाएंगे तेरे वास्ते। अब तू आए में शिकनी करना चाहता है क्यों? चुपो गन्ने चुपो गन्ने चुपो गन्ने चुपो गन्ने चुपो गन्ने और चोरी दे। बड़ा समझाया सी तेरी अनु, समझना आया सी तेरी अनु। ਹੁਣ ਕੰਨ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰਬਾਦ। ਹੁਣ ਚੁੱਪੋ ਗੰਨੇ 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 ਉਹ
ابھی کچھ سوالوں کے بعد ہم آزادی بھی سنیں گے ابرار الحق سے. ہم لے کے رہیں گے آزادی. ایک بار اپنے اپنے موبائل فون نکالیں, اس کی ٹارچ آن کریں, سارے پیچھے تک بائیں طرف. آپ صاحب ٹائیگر فورس والے جتنے بھی ہیں نوجوان, خان صاحب یقین مانیں یہ اتنے اصلی اور نسلی ہیں میں نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا, اور ان کی بات بھی آپ سن لیجئے گا. جی شکریہ. پہلے تو کوئی بھی جو پاکستان کے نظریے میں مانتا ہے کہ جس لیے یہ ملک بنا تھا, وہ کبھی بھی کشمیر کے لوگوں کو بھول سکتا ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے 1 لاکھ کشمیری قربانی دے بیٹھے, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں ایسے بھی لوگ تھے جو بار بار کہتے تھے کہ جی ہندوستان سے رشتہ ٹھیک کر لو, اور اپنے مقاصد کے لیے کرنا چاہتے تھے, تو کشمیریوں کو ان کی قربانیوں کو بھول جانا چاہتے تھے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے کبھی, جب سے 5 اگست 2019 میں جب سے انہوں نے کشمیر کے جو سٹیٹ ہوڈ واپس لی یہ نریندر مودی کی حکومت نے, میں کبھی بھی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم ہندوستان سے اپنا جو ہمارا رشتہ ہے وہ ٹھیک کریں, جب تک کہ وہ ان کو واپس جو ان کی سٹیٹ ہوڈ ہے واپس نہ دیں. میں دوسری بات آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہمارا یہ کل بھی چلے گا, اور ہم اس کو اور زیادہ یہ جو ہمارا آج کل اور آج ہوا عید کی چھٹیوں میں جو جشن, تو ہم کل بھی کریں گے, پرسوں بھی کریں گے, اور اس کے بعد ہر ویکنڈ پہ ہم کریں گے. کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان یہاں آتا ہے اس کی تربیت ہو, اس کو پاکستانیت کی سمجھ ہو, اس کو سمجھ ہو کہ جو یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ پہ, اس کا مقصد ہے کیا. یہ بڑا ایک عظیم خواب تھا ملک کا, اور یہ جو اوپر لوگ بیٹھ گئے ہیں جو یہاں سے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں, ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ ان کا تو پیسہ ڈالروں میں پڑا ہوا ہے. جب روپیہ گرتا ہے تو ان کے تو دولت میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے یہ ہماری ایک جد و جہد جاری رہے گی, اور اس لیے ہمیں اپنے کارکنوں کی تربیت کرنی پڑے گی. اور میں نجم کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب میں 9 سال سے اللہ سن رہا ہوں نجم کا, 9 سال سے دھرنے میں سے میں نے شروع کیا اس کا اللہ سننا شروع کیا, اور ابھی بھی اسی طرح کا میرے اوپر افیکٹ ہوتا ہے جو 9 سال پہلے تھا. اور نجم یہ اس کی ہے کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام میں بڑی پاور ہوتی ہے. جب آپ اللہ کا نام ایسے لیتے ہیں تو میں ابھی دیکھ بھی رہا تھا ساری آڈینس کو, سارے ہماری خواتین و حضرات جو یہاں آئے ہوئے ہیں, تو میں سب میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ کلام آتا ہے تو ایک دم لوگوں کے جذبات سامنے آ جاتے ہیں. اور یہ اب سے نہیں, یہ میں دھرنے سے دیکھ رہا ہوں. تب سے اللہ کا یہ جو جب ہم اللہ گاتے ہیں تو یہ تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا ایفیکٹ ہمیشہ ہماری پبلک میں ہوتا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو یاد کرا دوں کہ ہم جب 92 کا ورلڈ کپ ہم جیتے ہیں تو یہ سارا وقت اللہ ہمارے ڈریسنگ روم میں چلتا تھا. یہ تب سے اس کلام کی پاور میں جانتا ہوں. تو میں یہ چاہوں گا کہ نجم آپ نے ایک دفعہ اور اللہ گانا ہے, اور دوسری ابرار آپ نے وہ آزادی کا پھر سے ایک دفعہ گانا ہے. اور جب آپ کا آزادی کا چل رہا ہو تو پیچھے وہ جو فیضان ہمارا ٹائیگر ہے اس کا وہ ضرور پیچھے ویژولز دکھانے ہیں, تاکہ یہاں جو نوجوان ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ جذبہ اور جنون کیا کرتا ہے ایک انسان کو. کہ 8-9 گھنٹے وہ مقابلہ کر رہا تھا, اور اتنی ٹیئر گیس کھا کے اور اتنی شیلنگ کھا کے اس کے باوجود اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح اتنی سٹیمنا اس میں کدھر سے آیا, اور کیسے وہ پھر آخر میں بھی تھکا نہیں تھا, وہ پھر تیار تھا. تو یہ ہے ہمارا جو مستقبل کا نوجوان ہے جس نے انشاءاللہ ایک حقیقی آزادی ہمارے لیے جنگ جیتنی ہے. یہ وہ نوجوانوں میں جذبہ ہوگا جو انشاءاللہ وہ پاکستان بنائیں گے. رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ
रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग हर सू हर जा हर सू हर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तूने अता किया मैंने भुला दिया तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया तूने और दिया देता ही गया मुंह मोड़ दिए दरियाओं के मैंने हवाओं में उड़ना सीख लिया मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मेरी अगली नजर सितारों पर फिर भी मैं तेरे सितारों पर तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग मैं जहां भी जाऊं दुनिया में तेरे जलवे तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है अपने बच्चों के मुस्तकबिल का बातिल बन के रहता है ना जीता है ना मरता है क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा है हक हमारा है हक हमारा हम लेके रहेंगे हम लेके रहेंगे है हक हमारा आजादी हम लेके रहेंगे आजादी हम लेके रहेंगे आजादी हाथ ऊपर नारा तकबीर नारा तकबीर नारा तकबीर नारा तकबीर नारा तकबीर है तायर लाहौती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही वो दौड़ गया जब कहरो जफा कोहराम मचाया करता था जब दस्ते सितम आवाजों को खामोश कराया करता था जब अहले गिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था अब जाग उठा है ये देश हमारा अब जाग उठा है देश मेरा अब यलगारों की खैर नहीं है हक हमारा है हक हमारा तुझे देनी पड़ेगी हम लेके रहेंगे तुझे देनी पड़ेगी कैसे ना देगा जो तुमने ना दी तो छीन के लेंगे हम लेके रहेंगे हम लेके रहेंगे जरा झूम के बोलो दिल फाड़ के बोलो और जरा धाड़ के बोलो आजादी 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 नारा तकबीर कमाल कमाल भरपूर तालियां अबरारुल हक के लिए और आप अबरारुल हक और नजम शिराज आप दोनों साथ आएंगे उमर मलिक आप भी तशरीफ लाइए और एक माइक और दीजिएगा ये तफसील इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या इन्होंने मुश्तरका तौर पे और एक सलमान है जुनून वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और उन्होंने और नजम शिराज ने और अबरारुल हक ने मिलके एक जबरदस्त तराना तैयार किया है तफसीलात जानने के लिए हम अबरारुल हक भाई से रुजू करते हैं
बिल्कुल मुख्तसरन ये कि मैंने ये भाइयों से कहा था कि एक मिल के भी गाना चाहिए हमें कुछ, और हाँ जी खालिस पाकिस्तान का, और उसमें एक लाइन मेरे जहन में आ गई कि इश्क मांगता है पाकिस्तान। देखें अभी जो पाकिस्तान की जरूरत है ना, बाकी सब चीजों से हटके इश्क, अगर हम किसी से इश्क कर बैठते हैं ना, तो फिर हम उसकी भलाई चाहते हैं और उसकी अच्छाई चाहते हैं, और जब हमें अपनी जात से प्यारा हमारा मुल्क हो जाएगा, हम उससे सही मानों में प्यार कर बैठेंगे, तो फिर इंशाल्लाह वो तरक्की जरूर आएगी। और फिर मेरे साथ लिखने में मेरे भाइयों ने ये बताते चले खान साहब को भी और तमाम कारकुनान को कि ये जो आइडिया हमने सोचा था, ये 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च के कंटेनर के ऊपर बैठ के मैंने, इब्रार ने और सलमान ने ये फैसला किया था कि हम पहली दफा जिंदगी में एक चीज साथ करेंगे, इंशाल्लाह ये आखिरी नहीं होगी। इश्क मांगता है पाकिस्तान, पैशन मांगता है, जज्बा मांगता है पाकिस्तान, और ये हम इस वक्त परफॉर्म करेंगे। सलमान जहां भी हैं सुन रहे होंगे हमें। एक वादा करो, पाकिस्तान के साथ इश्क करते हो, अपने मुल्क को अपने आप से आगे रखोगे हमेशा। हाथ खड़ा करके इमरान खान साहब के साथ वादा कर दें कि हम अपनी जान माल हर चीज को मुल्क पे कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार हों, फिर जाके हमारा पाकिस्तान वो पाकिस्तान बनेगा जिसका ख्वाब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक नारा जो अभी ज़मान पार्क की इस हकीकी आजादी की स्ट्रगल के दौरान यहां की एपिसोड में बड़ा यहां पे फेमस हुआ, जुबान ज़दे आम हुआ, वो था जवानियां लुटाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, जवानियां लुटाएंगे। और एक दफा जरा मेरे साथ मिलकर आप जोरदार नारा लगाएंगे, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा। तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या इंशाल्लाह। और कल भी हम 7 बजे इकट्ठे होंगे, इमरान खान साहब यहां पे होंगे, परफॉर्मेंसेस भी होंगी और आपके सवाल भी होंगे, आपसे बात भी करेंगे इंशाल्लाह। और अभी कल 7 बजे और जाते जाते बच्चे जो है ना जी मेरे साथ यहां पे नारे लगाएंगे। चले जी जल्दी से लगा दें। कल 7 बजे इंशाल्लाह ताला सब लोग आएंगे जी। अच्छा जी, पहले खवातीन को, जितने हमारे मर्द हजरात है प्लीज इधर देखिए, पहले खवातीन को, हमारी खवातीन पहले जाएंगी इसको। अच्छा, सब पहले खवातीन को यह रास्ता देंगे, उसके बाद मर्द जाएंगे। और अभी ये बेटा जो है छोटा सा ये नाच सुनाना चाह रहा है। चले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो तन्हा कौन है, अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, मेहरबा वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहु, सब दिलों की जान है, उनकी सब निशान है। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी खैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह। अच्छा जी, अब आप लोग जरा बैठ जाइए, खवातीन को जाने दीजिए पहले और उसके बाद आप लोग जाएंगे। अल्लाहू आप लगा दीजिए जरा जी, अल्लाहू। बहुत शुक्रिया। कल 7 बजे इंशाल्लाह।